कोरोना की दूसरी लहर में लोगों के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होने की समस्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है, इसलिए वेंटिलेटर से ज्यादा ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ रही है। कोविड संक्रमण से जुड़े तमाम बिंदुओं और ऑक्सीजन की जरूरत से जुड़े तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में। आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारी फोन लाइंस भी अभी तक आपके लिए खुल चुकी हैं, साथ ही हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी आप जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं हूं जया सिन्हा और अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगी। प्रीति भी। Thank you, Jaya, and we welcome all of you to our special edition, Dr. Speak, a program we get for you every day, thrice a day, to make sure all your queries and myths regarding COVID-19 pandemic are dealt with. We are joined in by doctors in every show. You can put our questions and put forth by my co-anchor on our social media handles and also on the telephone numbers that is being flashed on your screens. Remember, you can ask generic questions also, though we will be focusing on oxygen therapy during the pandemic. This will be the topic today, but you can ask rest of the questions also regarding COVID pandemic to our guests. We are joined in by doctors. We are joined in by Dr. Suryakant. He is HOD Respiratory Medicine and member Corona Task Force, KGMU Lucknow. We are joined in by Dr. Deependra Kumar Rai, additional professor and HOD Pulmonary Medicine, AIIMS Patna, and Dr. A.K. Varshney, professor, Department of Medicine, Dr. RML Hospital, New Delhi. We welcome all of you this afternoon on the show. Dr. Varshney, I would want you to begin by explaining to our viewers what is the role of oxygen in the recovery or in the treatment of a COVID patient. What happens when COVID strikes a person, and to what extent are lungs affected when COVID strikes a person? देखिए, COVID is a viral infection, and by that time we know that most of the patient, almost 90% patient, are stable. They have the mild symptoms, and they do require only supportive management, no special treatment. But unfortunately, in around 10% patient whose immunity is down or otherwise, the infection goes to the lungs, and it causes a pneumonia. And once the pneumonia is there, the normal function of the lung, which is the oxygenation system, carrying the oxygen inside the blood and removing the carbon dioxide, that is affected. And these patient oxygen level start going down. And once the normal level is usually 98 to 100%, but above 95%, it's okay. When the level starts going down below the 94%, patient may have the difficulty in breathing. However, sometimes in the COVID, we have observed that even at the lower level, even up to 90%, patient does not have the difficulty. And what we call is happy hypoxia. So the measurement of the oxygen level is very important. And once the oxygen level starts going down below the 94%, patient do require the oxygen therapy. And we have to maintain the oxygen level anywhere between above the 90 to 94%, 95%. So oxygen is definitely required in certain percentage of the patient, almost 5 to 8% patient, we require the oxygen therapy. बिल्कुल, तो यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन लेवल क्या है, इस पर लगातार विवाद चल रहा है। इसी को लेकर सब काफ़ी संशय में भी हैं। डॉक्टर दीपेंद्र, आपसे यहाँ पर पूछना चाहेंगे, जिस तरह से इस वक्त ऑक्सीजन लेवल्स को लेकर काफ़ी लोगों में चिंता की लहर है, एक बार फिर यहाँ पर दर्शकों को साफ तौर पर हम ये बताना चाहते हैं कि एक हेल्दी इंसान की अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए हमारा सही ऑक्सीजन लेवल, और अगर एक इंसान में कोविड पॉजिटिव है तो कब उसके लिए खतरे की घंटी बजनी चाहिए या उसका ऑक्सीजन लेवल क्या होना चाहिए? जो कोविड इन्फेक्शन है, हम लोग को पता है कि इसकी सिविरिटी 3 लेवल पे हम मेजर करते हैं। ज्यादातर ऑलमोस्ट 80% जो पेशेंट है उनको माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं, और माइल्ड इन्फेक्टेड पेशेंट्स में जनरली लंग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मेनली आपको अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें कि नाक, गला और अपर रिस्पिरेटरी वाला पार्ट है लैरिंग्स के ऊपर, तो वो इफेक्टेड होते हैं। तो उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन जनरली 94 से ऊपर रहता है। तो वैसे मरीज को ऑक्सीजन के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से नीचे आता है, इसका मतलब है कि जो वायरल इन्फेक्शन है वो आपको नीचे लंग्स में भी अफेक्टेड हो रहा है, निमोनिया वाला कॉम्पोनेंट भी आ रहा है। तो सैचुरेशन अगर 94 से नीचे आता है तो हम लोग इसको मॉडरेट कैटेगरी में डालते हैं, और 90 से नीचे आता है तो सीवियर कैटेगरी। तो जितने भी मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी वाले पेशेंट्स हैं उनको ज्यादा चिंता करनी है ऑक्सीजन के लिए। जो कि माइल्ड केसेस है
अगर उनका 94 से ऊपर है तो उनको ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। स्पेशली अगर एल्डरली पेशेंट्स है, चाहे उनको कोमॉर्बिडिटी है, बहुत सारे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई क्रोनिक लंग डिजीज है, मैलिग्नेंसी है, तो उनको ज्यादा थोड़ा वरीड होने की जरूरत है। और वैसे केसेस में मेडिकल कंसल्टेशन लेने के बाद ही होम आइसोलेशन में रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट सर्टेन ड्यूटेरेट करते हैं। या ये भी देखा गया है कि सिम्टम मरीज को जस्ट बुखार है, लेकिन सेचुरेशन कभी कभी बहुत ज्यादा फॉल कर जाता है, उसको सांस की भी तकलीफ नहीं होती है, जिसको हम हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं या साइलेंट हाइपोक्सिया। इसलिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सांस की दिक्कत नहीं है अभी, तब भी आप पल्स ऑक्सीमीटर से अपना सेचुरेशन मेजर करते रहें। और 94 से ऊपर है तो बहुत ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल हेल्दी आदमी में नॉर्मली 96% से अगर ऊपर है, तो नॉर्मली हेल्दी 96 से ऊपर होता है, तो उसमें आपको ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। हमेशा जब भी पल्स ऑक्सीमीटर लगाएं तो आप थोड़ा वेट करें, आप 2 मिनट तक वेट करें, और उसके बाद जो रीडिंग आती है उसको एक तरह से वो रिलायबल होता है। नहीं कि लगाने के साथ ही अगर सिचुएशन थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, या उसमें नेल पॉलिश है, या और भी बहुत सारी चीजें जो अफेक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए, पहले एक आराम से बैठे 1-2 मिनट वेट करें पल्स ऑक्सीमीटर लगाने के बाद, और उसके बाद जो रीडिंग आती है उसको आप माने कि सही रीडिंग है। तो जिनको भी 94% से ऊपर है उनको बहुत ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है, और उनको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। तो स्पेशली जो 94 से नीचे जाए मॉडरेट केसेस, और 90 से नीचे सीवियर केसेस, उसमें ऑक्सीजन थेरेपी का ज्यादा रोल है। All right, we're getting this question on our Facebook page. Anil Chauhan wants to know that my brother is COVID positive. He has got cough, but he does not have rest of the symptoms and he seems okay. He wants to know क्या किया जाए. So it means that he has a mild infection. He has not complaining of breathlessness, and I'm sure the respiratory rate is also less than 24 per minute. And saturation, I'm expecting it is more than 94%. So such type of patient just need a home isolation. There is no specific medication. He just need to take, if he has a fever, then paracetamol, or he can take some cough syrup, especially the dry cough syrup if he has a cough, and he has to take a good hydration. And just monitoring his symptom. If the fever comes, they should just monitor their temperature, and of course they have to measure the oxygen saturation, breathlessness if it develops. So just monitoring required. There is no specific medication, and such a patient there is no need to panic, or there is no need to worry about that. But such patients need to just monitor their symptom till the 14th day, because we have seen that there are few cases, even in the middle-aged, 40s group. Even after 7 days or 10 days deteriorating. So it is very important to monitor their symptom and oxygen saturation. But in such type of patient, there is no need to worry. They should just be in home isolation and take some supportive or conservative treatment. बिल्कुल। दीपेंद्र जी, यहाँ पर एक चंद्रशेखर भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं। वो उनका सवाल है कि उनके भाई को 6 दिन से बुखार है, RT-PCR टेस्ट उनका अभी हो गया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। ब्लड टेस्ट सैंपल्स भी दिए हैं। क्या अब उन्हें 6ठे दिन से स्टेरॉइड्स मेडिसिन लेनी चाहिए, और कितनी लेनी चाहिए? और उनका एस्ट्रोमाइसिन और पैरासीटामोल ये अभी भी ले रहे हैं। इनको 6 दिन से बुखार है, अभी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है। मैं मान के चलता हूँ कि इस पैंडेमिक में उनको कोविड ही होगा। तो अभी माइल्ड केसेस है, केवल फीवर है और कोई उनको सिम्टम नहीं है, ब्रेथलेसनेस की सिम्टम नहीं है, और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी नॉर्मल ही होगा। तो ऐसे केस में उनको स्टेरॉइड की इंडिकेशन है ही नहीं, उनको स्टेरॉइड एकदम नहीं लेना चाहिए, और उनको जस्ट पैरासीटामोल अभी ले, 500 या 650 3 टाइम ले, उनको अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करें, रिपोर्ट को देखें और सिचुएशन मॉनिटर करें। ये मान के चले कि उनको कोविड है जब तक रिपोर्ट नहीं आता है, और रिपोर्ट आता है और कोविड भी है तो होम आइसोलेशन में रहे, और अपनी ये जो जितनी मैंने चीज बताया उसको मॉनिटर करते रहें। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल ट्रीटमेंट में माइल्ड केसेस के लिए आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है। अगर फीवर है तो पैरासीटामोल और कफ सिरप ले सकते हैं अगर कफ है तो, और किसी भी मेडिकेशन का प्रूवन नहीं है। मेरे पर्सनल व्यू है कि आइवरमेक्टिन माइल्ड केसेस में जो भी है उनको 12 मिलीग्राम का बीडी डोज में 2 सुबह शाम 5 दिन तक ले सकते हैं, जिसका एक मोर्टेलिटी बेनिफिट है और डिजीज को प्रोग्रेशन से रोकता है। अदरवाइज मेरे व्यू में स्टेरॉइड का तो क्लियर कट रोल नहीं है, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन बहुत रोल ले रहे हैं, उसका भी कोई रोल नहीं है।
तो आइवरमेक्टिन ले, पैरासिटामोल ले और अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करें और अपने को मॉनिटर करते रहें और एकदम पैनिक नहीं हो। All right, doctor, I would also want you to spell out more clarity on the usage of oxygen cylinders and the oxygen concentrators. What is the difference between the two, and for a person who is in home isolation or who is getting a telephonic consultation through his physician, how should or what is the special points or tips that a person needs to take care of when using either of these two at home? So these two are the different source to provide oxygen. Oxygen concentrator is basically a device which just filter out the nitrogen from the air and convert it into the pure oxygen, in which there is a 90 to 95% pure oxygen in there. It is a costly thing. Around the minimum cost is around 50,000 for 5 liter per minute oxygen concentrator. The 10 liter costing more than 1 lakh. But cylinder is you can say it is a cheap device that can be taken from the local place, and it is more frequently available in compared to oxygen concentrator at this pandemic, because we have seen that the oxygen concentrator is not available everywhere, and it is also marketed at a very higher price. This 50,000 being sold at around 2 lakh. So cylinder availability is also an issue, but it would be better to use a cylinder. But the oxygen concentrator, the advantage of oxygen concentrator is that you just need electricity and it will provide the oxygen throughout the day, and there is no need to refilling, which is required in the oxygen in the cylinder. So that is the advantage of oxygen concentrator. So those patients who have been mild cases, I think, and those who are in home isolation, and especially moderate cases, but in mild cases we don't recommend oxygen therapy. Those who are having saturation of more than 94%. But those who are having a moderate case, especially those who are having saturation of 90 plus but less than 94, in that cases they can use either one. If they are affording, then you can go for oxygen concentrator. But even oxygen cylinder is enough, because they may not require throughout the day and the night, but especially after the exertion, if they are more falling, then you can take the oxygen. Otherwise, if they are maintaining saturation of 92 plus, then there is no need to take the oxygen, and they have to just monitor their saturation. It is very important to know that the patients should be aware that oxygen is also drug. So they should follow all the things which are related with the drug, like what is the indication, what should be the dose. They are not. They should always try to consult some medical practitioner or healthcare provider. How much I need oxygen, 1 liter, 2 liter, 3 liter, and what should be the route, and when we need to take, when we need to stop. Because even the higher amount of oxygen, that is also harmful. But keeping the saturation 96 plus in the long term, it may harm. There are studies which show that the patient who take a higher amount of oxygen, they may develop some pulmonary sequelae in form of fibrosis. So they should be very careful about that. If they are using oxygen, they should always take help of healthcare provider. डॉक्टर दिपेंद्र, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि ऑक्सीजन का लेवल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस बारे में भी लगातार बात चल रही है कि जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो भी कितना सही होना चाहिए। क्या घर पे जो मरीज़ हैं, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हें वो राहत पहुंचा सकता है जिनकी उनको ज़रूरत है, या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उन्हें ज़्यादा मददगार हो सकते हैं? जो खास तौर पर जो होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स हैं, जो घर पर रहकर ठीक हो रहे हैं, उनके लिए किस तरह से ऑक्सीजन थेरेपी सही तरीके से काम करनी ज़रूरी है? जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ यही इशू है कि उसे रीफिलिंग करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि आपको लेकिन उसके प्रेशर को लेके भी थोड़ा सा रहता है कि प्रेशर कितना होना चाहिए। प्रेशर का नहीं, उसमें फ्लो का ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर ऑक्सीजन प्रेशर थेरापी तो नहीं होती इसमें सिलेंडर के साथ, चाहे आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दे रहे हैं तो वहाँ प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, वहाँ पे फ्लो का इंपॉर्टेंट है, आप कितनी फ्लो पे ले रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आपको ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जाए, अदरवाइज जो ड्राई एयर जाती है वो आगे सांस की नली को ड्राई करके और फिर वो इरिटेशन होने लगती है। तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर यूज कर रहे हैं तो उसमें नॉर्मली ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक फ्लो मीटर होता है और उसमें वाटर डालते हैं जिससे कि ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन रहे। तो इस बात का ध्यान रखना है, जिसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है डेफिनेटली ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड उसमें प्रेफर्ड होगा। जिनको बहुत कम जरूरत है, जिनका सैचुरेशन 92 से ऊपर है, तो उसमें सिलेंडर इज इनफ। बट जिनका सैचुरेशन जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस, बहुत सारे लोग
बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है बाहर, तो इवन 85% सिचुएशन है के ऊपर भी है, वो भी घर पे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, और स्पेशली एल्डरली पेशेंट। तो उस केसेस में अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि वैसे केसेस में थ्रू आउट उनको दिन में देना पड़े, रात में देना पड़े, जैसे कि सिचुएशन उनका 92 से ऊपर है, 94 से ऊपर है, तो जिनको ज्यादा जरूरत है उनके लिए कंसंट्रेटर, बट जिनको इंटरमीडिएट जरूरत है, लगातार जरूरत नहीं है, उस केसेस में सिलेंडर इज इनफ। All right, we're getting a caller. Mr. J.K. Bhatnagar is joining us from Delhi. Good afternoon, Mr. Bhatnagar. Please ask your question. Sir, I want to know how to check the genuineness of your oximeter. All right, I'll take that question to Dr. Suryakant. Dr. Suryakant, one of our viewers wants to know how to check the authenticity of an oximeter. Or I think we've not been able to establish proper contact with Dr. Suryakant. Dr. Varshney, would you take this question, please? Yes, good oximeter, actually you can check on the normal person. Those person who are not having any problem. Ideally, they should have a 98 to 100% oxygen saturation on the oximeter. So we can definitely, there can many family members in your home, and you can check on everyone. And if they are normal, so their reading should be, if a normal person shows a reading of the less than 95%, that means your oximeter is not working properly. So a normal person, you can check with the normal person. And if a normal person is showing the reading of 97, 98%, that means oximeter is good. And then in comparison, if a patient is having a oxygen level of less than 94%, definitely it is significant. All right, Mr. Rajkumar on our Facebook page wants to know that can we use home remedies to correct the oxygen level, and even if a person is not affected by COVID, to be on a safer side, can he practice regular steaming? Yes, Dr. Dipendra, would you take that question? Yes. So for the home remedy, I think only the proven therapy is the prone ventilation. जो पेट के बल लेटने की बात होती है, उसमें ये देखा गया है कि उससे ऑक्सीजनेशन बेटर हो जाती है ऑलमोस्ट 5% तक। लेकिन जो भी माइल्ड केसेस हैं उसमें ये स्टडी तो प्रूव नहीं करते कि भी हेल्प इन रिटार्डिंग द प्रोग्रेशन और रिड्यूस द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर बाय जस्ट स्लीपिंग। हाँ, यहाँ पे एक सवाल सादिया पूछना चाहती हैं कि इज एवरमेक्टिन सेफ एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, डज इट हैव साइड इफेक्ट्स? डॉक्टर सूर्यकांत, आप ये सवाल लेंगे? डॉक्टर सूर्यकांत को हमारा अभी नहीं मिल पा रही आवाज़। डॉक्टर वार्ष्णे, एवरमेक्टिन का इस्तेमाल काफ़ी किया जा रहा है इस वक्त, क्या ये सेफ मेडिसिन मानी जा सकती है? एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर भी इसको लिया जा सकता है? ने जो है एम्प्लॉइज को दिया था, एंड दे फाउंड के दोज एम्प्लॉइज दे गिव द आइवरमेक्टिन 300 माइक्रोग्राम पर केजी body weight on the first day, third day, 7th day, and then once in a month. And they found there was a reduction of the 60% in those persons. But no further study was done. As on today, the WHO or any other organization do not consider it as a preventive medicine. Definitely, role even in the COVID patient is controversial, but most of the doctors are prescribing because it is a very safe medicine and have some weak antiviral activity, and a dose of 12 milligram per kg for 3 to 5 days can be given to a COVID patient, and generally there is no harm in these medicine. But how much they are effective, it is very controversial. बिल्कुल। यहाँ पे राहुल यादव भी, मैडम एक बात ऐड करना चाहूंगा आइवरमेक्टिन से रिलेटेड। जी। तो आइवरमेक्टिन से एक हम लोग ने आरसीटी किया था एम्स पटना में, तो हम लोगों ने स्पेशली माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ही लिए थे कोविड के। तो हम लोगों ने ये पाया कि हम लोग ने 2 दिन दिया था उसको, तो हम लोगों ने पाया कि कोई वायरल कन्वर्जन या जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव से नेगेटिव होने में या उनका जो रिकवरी टाइम है तकलीफ से, उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिला। केवल ये मिला कि देयर इज अ मोर्टेलिटी बेनिफिट। जो आइवरमेक्टिन ग्रुप था उसमें डेथ कम हुई इन कंपेयर टू स्टैंडर्ड ग्रुप।
तो यहाँ पे लगता है कि इसको लेने से देयर इज अ मॉर्टेलिटी बेनिफिट, क्योंकि बहुत ही चीप ड्रग है. इट वुड बी बेटर टू ऑलवेज टेक इन द ऑल द पेशेंट विद अ माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी. दिस इज माय व्यू. जी, यहाँ पे राहुल यादव का एक सवाल है कि उन्होंने आरटीपीसीआर एंटीजन कराया और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन अभी भी उन्हें बुखार बना हुआ है, सर में दर्द है और कमजोरी भी है. क्या उन्हें करना चाहिए? डॉक्टर दीपेंद्र, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन मैम? ये राहुल यादव पूछना चाहते हैं कि उनका आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन अभी भी उनका बुखार बना हुआ है, सर में दर्द है और कमजोरी है. ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? तो नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं कि कोविड जो इन्फेक्शन है उसके 2 फेजेज आ रहे हैं, जैसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. जो फर्स्ट 7 डेज है वो वेरेमिक फेज होता है, जिसमें कि वायरल लोड ज्यादा होती है, और आफ्टर 6 to 7 डेज ज्यादातर पेशेंट आरटीपीसीआर नेगेटिव हो जाते हैं. लेकिन जो सेकेंड फेज होता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी फेज बोलते हैं, जिसमें कि हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करके प्रोटेक्ट करना चाहती है, उस फेज में भी पेशेंटों को फीवर रहता है और वीकनेस रहता है. तो वैसे केस में आपको भी अभी भी मैं बोलूंगा कि उसमें जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है. अगर सांस नहीं फूल रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन कर रहे हैं, तो पैरासीटामोल लें और अपने को हाइड्रेट करके रखें और अपनी सैचुरेशन को मॉनिटर करते रहें. कोई न्यू सिम्टम या ब्रेथलेसनेस डेवलप कर रहे हैं या सैचुरेशन फॉल कर रहा है, तो उस केस में आप तुरंत कंसल्ट करें हेल्थ केयर प्रोवाइडर से. All right, Dr. Suryakant, I would want you to take this question. A person Okay. Who says that he felt cough and cold, but his report was negative. There are numerous cases wherein the person is being tested negative for the virus, but still there are some symptoms. What should a person do in that case, and how often or when should a person go for CT scan? Okay. If you see, there are a lot of cases who are, of course, presenting with some symptoms of cough, some expectoration, some sore throat, some running of nose, some itching of the eyes, but they are tested negative. There are a lot of patients coming like this. But if their oxygen saturation is going below 94, and if they are having dyspnea, if they are feeling breathlessness, then of course they should consider themselves as COVID test. The exact terminology for these patients, they have been described as presumptive COVID. And this is the time, if you feel breathlessness and if your oxygen saturation is going below 94, then of course you can have CT thorax also, high resolution CT thorax. And with this high resolution CT thorax, if it's also showing COVID pneumonia, and if it is score is more than 8, that is significant, then of course you have to, of course, be treated as COVID. Presumptive COVID or COVID, the treatment remains the same. So all cases, I think in this scenario, whatever the symptom may be headache to body ache, symptom may be vomiting, symptom may be diarrhea, symptom may be just, not feeling well. Symptom may be loss of taste or loss of smell. Any symptom, any new symptom, this always should be considered as a case of COVID-19 until proved otherwise. If you are tested RT-PCR negative, then and if your oxygen saturation is going down, then of course you can take the help of CT thorax, high resolution CT thorax. And yes, such type of cases are called presumptive COVID, and they should be treated as COVID. There is no difference between the treatment of presumptive COVID and COVID. जी, डॉक्टर सूर्यकांत, साथ ही इस वक्त हम लगातार आपके ऑक्सीजन लेवल्स को मॉनिटर करने की बात हो रही है. ऑक्सीमीटर के जरिए हम ये कर भी सकते हैं, लेकिन क्या ऑक्सीमीटर के अलावा भी किसी तरह के कोई लक्षण हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए, जिन पे ध्यान देते हुए हम ये बात अनुमान लगा सकते हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं. अगर हम अपनी बात को पूरा सेंटेंस में नहीं बोल पा रहे हैं, हमारी सांस फूल जा रही है, अगर हम 6 मिनट तक प्लेन में वॉक नहीं कर पा रहे हैं, बीच में हमें रुक जाना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए हमारा ऑक्सीजन लेवल नीचा है. अगर हमारे होठों पे नीले नीले निशान पड़ गए हैं, नाखूनों में ये नीले नीले निशान पड़ गए हैं, हमारी जीभ हो रही है, तो समझ लीजिए हमारा ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे चला गया है. हम कोई एक्टिविटी, जो इंडोर एक्टिविटीज होती हैं, कपड़े पहनना, बाहर जाना, शेप बनाना, इधर उधर जाना, अपना कोई काम करना, लैपटॉप इधर उधर उठा के बैठना, या कोई भी छोटे मोटे काम करना, अगर उस काम करने में हमारी सांस फूल रही है, इसका मतलब हमारा ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है. कोई जरूरी नहीं है कि अब आप पल्स ऑक्सीमीटर
हो तभी जान सकें, लेकिन हाँ ये सब लक्षण है, रेड फ्लैग साइन जिन्हें हम कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, आपको डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, आपको ऑक्सीजन के सपोर्ट की जरूरत है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चे हैं और अगर वो एक सांस में गिनती बोलने की कोशिश कर रहे हैं 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5, लेकिन थोड़ी देर में उनकी सांस टूट जा रही है, वो कह रहे नहीं मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मैं सांस पूरी काउंटिंग नहीं कर पा रहा हूं, तो अगर उनको भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इनको भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। All right, a very important point put forth by you, doctor, there. How should how should this be treated in children, because it's not safe to take children to hospitals, it is not safe to self-medicate the children. So what is to be done if a child is facing this problem of low oxygen level? Yes, that's very important, and very simple thing is that you use the prone position. Prone position is a very important, very effective measure. I would say that it is the first aid for the oxygen. If you're really having loss of oxygen, if your oxygen level is low, then prone position is a first aid. It's like a first aid for any injury. So it's for if you are How long if you're having should saturation one be in that lower, position, sir? If your oxygen level are lower, then of course prone position is a boon for you. And children, they like prone position. If you see small children, they are used to lie on the prone position. So just make them prone position comfortably with the help of 1 or 2 or 3 of flows. Otherwise, whatever the patient comfortable position he feels. So just in prone position means पेट केवल उसको लिटा दीजिए. अगर पेट केवल बहुत देर तक नहीं लेटा सकते हैं तो राइट करवट या लेफ्ट करवट भी कर सकते हैं. And please use for a maximum of 16 hours in 24 hours. This prone position, and definitely 5 to 10% increase in oxygen saturation you will get within 5 to 10 minutes. So that's a wonder. So everybody should utilize this home remedy for increasing the oxygen saturation. Second, if you have you see apprehension, anxiety, that is also a factor, or your oxygen will go down. And if you see, I have the formula of prone position, I will utilize this and my oxygen will go up. So a positive attitude in the mind. A negative attitude in the mind, this leads to decrease in oxygen. And of course, a positive attitude in the mind, this leads to increase in oxygen. That's a very important. Support from the family members. Don't say, अरे भाई ये तो सांस फूल रही है, अस्पताल में बेड नहीं खाली, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, ये तो मर जाएगा, हम क्या करें, भगवान बर्बाद हो गए. अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो इससे नेगेटिव एटीट्यूड होगा, नेगेटिव वहां पे एनर्जी जनरेट होगी और ऑक्सीजन लेवल और नीचे जाएगा. हमारे पेशेंट का एड्रेनलिन सीक्रेट होने लगता है, और एड्रेनलिन जब सीक्रेट होने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है और हमारा ऑक्सीजन लेवल और नीचे हो जाता है. बिल्कुल, तो सकारात्मक सोच आपको रखनी है और आप घर में भी एक्सरसाइज, प्रोन पोजीशन करके योग से अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं. कॉलर यहाँ पे ले लेते हैं. सिद्धार्थ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं लखनऊ से. जी सिद्धार्थ, अपना सवाल पूछें. जी, डॉक्टर सूर्यकांत से हमारा क्वेश्चन है. जी, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज ILD IPF के पेशेंट हैं फॉर द पास्ट 2-3 इयर्स, और अप्रैल में जो है माइल्ड कोविड केस था, रिकवरी हो गई है. अब इसके बाद जो है IPF ILD के बैकग्राउंड में ये माइल्ड रिकवरी हो गई है, माइल्ड केस होते हुए कोविड की, तो अब क्या प्रिकॉशन और क्या ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए क्रिटिकली जो है, डॉक्टर सूर्यकांत साहब से हमारा क्वेश्चन. जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और अच्छा है आप तो हमारे लखनऊ से ही हैं. देखिए, मैं आपको बता दूं कि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस या ILD ये एक फेफड़े की बहुत अब कॉमन समस्या हो गई. जब तक हम लोगों ने इंडिया ILD रजिस्ट्री एक स्टडी रिसर्च नहीं की थी जिसने दुनिया की सोच बदल दी इस ILD के बारे में, हम ही लोगों ने अध्ययन किया था ये शोध. जी, हम ही लोगों ने शोध किया था. उसके बाद दुनिया की जो व्यू पॉइंट है वो बदल गया पूरा ILD के बारे में. तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, लंग की ये कंप्रोमाइज सिचुएशन है, और आपके पिताजी को, आपके पेशेंट को अगर माइल्ड डिजीज हुई है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं. वरना लंग जिनकी कंप्रोमाइज है किसी भी बीमारी से, पुरानी TB हुई हो या LD हुई हो या COPD हो या अनकंट्रोल्ड एस्थमा हो, उनको यूजुअली बहुत गंभीर बीमारी होती है. लेकिन आप सौभाग्यशाली रहे कि उनको माइल्ड बीमारी हुई और वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं. लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हमेशा, एक तो अगर उस बीमारी के रिकवरी के 2 हफ्ते हो गए हैं तो उनका वैक्सीनेशन अगर अभी तक नहीं हुआ है तो वैक्सीनेशन कोविड का जरूर करा लें. दूसरी बात, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन और निमोकोकल वैक्सीन, ये भी ILD के एक्सरबेशन को बचाव करती हैं, ये भी जरूर करा लें.
तो आपको सोचिए 3 वैक्सीन आपको ध्यान में रखनी है। कोविड वैक्सीनेशन कराना है, निमोकोकल वैक्सीनेशन कराना है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन कराना है। लेकिन ध्यान रखें कि कोविड वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन के बीच में मिनिमम 2 हफ्ते का अंतर होना चाहिए, और आपका पेशेंट रिकवर हो चुका है, अगर कोविड वैक्सीन लगवानी है तो उसमें भी मिनिमम 2 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। 2 से 4 हफ्ते के बीच में आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरा, मरीज को घर से बिल्कुल बाहर मत आने दें, और ऐसे मरीज के अंदर आप मान के चलिए कि जो बाहर से अंदर घर में आया है, आप मानिए कि वो कोरोना साथ लाया है, उसको आप ऐसे ही व्यवहार करिए। तो जो बाहर से अंदर आ रहा है, उसका मेरा फॉर्मूला है कि सबसे पहले वो एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन करे अपना, और इंटरनल सैनिटाइजेशन करे। इसका क्या मतलब है कि बाहर से जो आया वो पहले साबुन पानी से नहाए, ये हो गया एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन कोरोना के लिए, और उसके बाद पानी उबाल के 5 मिनट भाप ले ले, ये हो गया कोरोना का इंटरनल सैनिटाइजेशन। अब आपने कोरोना फ्री कर दिया बाहर से घर आने वाले अंदर को, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, रिश्तेदार को तो बिल्कुल नहीं बुलाना है। अब आपका पेशेंट जो है, आईडी का पेशेंट, ये हो गया कॉन्फिडेंट कि मुझे अब कोरोना नहीं लग सकता है। दूसरी बात, कोरोना आईडी की जो आपकी दवाएं चल रही हैं उनको रेगुलर लेते रहिए, आप अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहिए। हम लोग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ई संजीवनी ऐप से डिजिटल ओपीडी चला रहे हैं। कभी भी आपको हमारा कंसल्टेशन लेना है तो आप हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के या संजीवनी ऐप जो गवर्नमेंट का है उसमें जाइएगा, और रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट की ओपीडी को आप ढूंढ लीजिएगा, और उसमें सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, संडे और गस्टेड हॉलीडेज को छोड़ के, कभी भी आपको डिजिटल परामर्श आपके बाबूजी के लिए मिल जाए। All right, we'll bring in Dr. Vashna at this point in time. Dr. Vashna, there is this question. Dr. Vashna, am I audible? Yes, yes. This is the question, and the person wants to know that my wife is 62 years of age, and she felt sudden slight pain in the chest during night. In the morning when she got up, she took Pantocid, and she got some relief. So could that be any symptom that has to be taken care of, or could that be a gastric problem? देखिए, any chest pain, if the patient is, because she is an elderly lady and have the chest pain in the night, we should not ignore this chest pain. And many times the cardiac patient comes like that and they think it is a gastric pain. They took some Diazine or Pantocid, and unfortunately times runs out for them. They should immediately go to the or cardiologist, get the ECG done and get the other checkup done. And cardiac disease should be excluded, because that is the most important thing. And if the cardiac disease is there, right treatment can save the life. Because we have found that many patients take it granted, this is mild gastric problem or the acidity problem, and they do not take the proper treatment, and unfortunately then they die suddenly. So they must immediately go to a good cardiologist and get the full checkup. बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक और सवाल यहाँ पर आया है, डॉक्टर सूर्यकांत आपसे पूछना चाहेंगे, ये जानना चाहते हैं कि इनको 100 से कम बुखार बना हुआ है, 12 दिन हो चुके हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक है, कोई ब्रेथलेसनेस नहीं है, ऐसे में कोई और इनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या किया जाए? देखिए, ये इन्होंने ये नहीं बताया कि ये कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पता नहीं टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। आप दोनों केसेस बता सकते हैं डॉक्टर? जी ठीक है। देखिए, इस समय हम कोई भी फीवर हो वो उसको हम कोविड ही माने जब तक कि कोई दूसरा कारण ना मिले। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से इनका नीचे नहीं आया तो इन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और केवल बुखार अगर हो रहा है तो उसके लिए पैरासिटामोल लेने की जरूरत है। साधारण रूप से ऐसे बुखार 1-2 दिन रहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन साथ में 94 से नीचे, मैजिक नंबर 94 से नीचे जाता है तो ये 100% जान लें ये कोविड ही है। डॉक्टर सूर्यकांत, यहाँ पर 12 दिन से बुखार बना हुआ है, लेकिन कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव ही है। कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है तो घबराने की कोई बात नहीं, ऑक्सीजन इनका मेंटेन है, तो सिंपल एक बुखार की पैरासिटामोल दवा ले लें, एक कोई छोटा मोटा एंटीबायोटिक ले लें, इसी से ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। अगर हैवी कोविड तो ये एसिम्प्टोमेटिक टाइप का या माइल्ड टाइप का कोविड है, क्योंकि इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन है। All right, a caller is joining us. Vikas Chaudhary is joining us from Jammu. Welcome to the show, Mr. Chaudhary. Please ask your question. Hello. Yes.
या गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. मैम मेरे को ये पूछना है कि जो फर्स्ट वेव था कोविड का, ये मेरे को अगस्त के महीने में मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था और मेरे को तब से लेके अभी तक जो मेरा सेंस ऑफ स्मेल है वो काम नहीं कर रहा है। तो मुझे ये जानना है कि उसके पीछे का रीजन क्या है और वो अभी तक सही नहीं हुआ, उसका रीजन क्या है? Ji, Dr. Dipendra, would you take that question after having recovered from COVID a year back? The sense of smell has not got back to this caller. Would you take it? Yeah, so we have seen this is also one of the common symptoms of COVID. And in the COVID symptom, most of the symptoms subsided, like cough, fever, even breathlessness subsided within a month. But there are few patients who are having a continued persistent loss of this smell issue. Persisting from since August, almost 6 months, it is very unlikely. I have not seen such a longer period of smell loss after the COVID. But generally, it is associated with the damage to the nerves, so it takes the time to recover. But most of the patients recover in 4 to 6 weeks. But he has a persistent symptom. I think he need to consult some ENT people for the further evaluations. But most of the patients generally gain this sense of smell within a month or 6 weeks or 1.5 months. But because he has for the long period he has not getting this, so it would be better to consult some ENT people so that they will further evaluate for some other possibility. All right, Dr. Varshney, we're getting this question on our Facebook page. Mr. Sanjeev Bhardwaj wants to know that he's 57 years of age, suffering from ulcerative colitis, and for the past 7 years he is taking homeopathic medicines, and for the past 2 years he is somewhat okay. He specifically wants to know that can he take the vaccination? Yes, he must take the vaccination, and he can take the vaccination. There is no contraindication. यहाँ पर डॉक्टर सूर्यकांत ये भी जानना चाहते हैं कि इस वक्त ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो घर पर होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो रहे हैं और घर पर ही उनको ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जा रही है। क्या कुछ सावधानियां उन्हें ध्यान में रखनी है घर पर ऑक्सीजन थेरेपी करते वक्त, और क्या उनके उस वक्त क्या डिसीजन पावर होना चाहिए या फिर क्या खतरे की घंटी होनी चाहिए कि उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छी सिचुएशन है। मैं 2 सलाह दूंगा। एक तो अटेंडेंट ये सोचते हैं कि मेरे ऑक्सीजन पेशेंट की कम हो गई, चलो इसको घुमाओ, रेगुलेटर को बढ़ाओ और 99-100 को ले जाओ। कृपया ऐसा मत करें। ऑक्सीजन का जो हमारा पर्पज है 95 से 100 नॉर्मल होती है, तो ऑक्सीजन को 95-96 बस इतने ही तक ले जाएं। अति उत्साह में रेगुलेटर घुमा के ऑक्सीजन का फ्लो रेट बढ़ा के और बड़ा खुश होके पिक्चर देख के कि देखो तुम्हारा 99 आ गया, 100 आ गया, ऐसा बिल्कुल मत करें। उसका कारण मैं बताता हूं। उसका कारण ये है कि अगर आप 99-100 बाहर के सपोर्ट से ऑक्सीजन रखेंगे तो बॉडी का जो हमारा अंदर सिस्टम है, जो खुद ऑक्सीजन मेंटेन रखने की उसकी कैपेसिटी होती है, उसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो भूल जाएगा, बॉडी का सिस्टम भूल जाएगा कि भैया ठीक है आप ही ना ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे हैं, अब तो मुझे मेंटेन करने की क्या जरूरत है। तो कृपया ऐसा ना करें। बहुत लोगों को मैंने देखा अति उत्साह में कि हाय मेरा मरीज जो है वो 99-100 पर है तो बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्दी दौड़ने लगेगा घोड़े की तरह। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन डिपेंडेंसी आ जाएगी, बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन चलेगी और उसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। एक बात मैंने कहा कि घर वाले अति उत्साह में ना रहें। ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन उसका 94, 95, 96 बस इतना ही रखें, 97, 98, 99, 100 ना रखें। एक बात। दूसरी बात है कि अगर ऑक्सीजन सपोर्ट देने के बावजूद भी ऑक्सीजन गिरता है, मतलब आप प्रोन पोजीशन यानी पेशेंट को पेट के बल भी लिटा रहे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट भी दे रहे हैं, और ऑक्सीजन सपोर्ट जब दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रोन पोजीशन बंद कर दें। प्रोन पोजीशन हमारी नेचुरल पोजीशन है। जब पेशेंट के हम पेट के बल लिटाते हैं तो हमारा जो नॉर्मली सीधे लेटने पर हमारा दिल जो है वो फेफड़े को थोड़ा दबाए रहता है, हमारा लिवर भी थोड़ा सा फेफड़े को दबाए रहता है, हमारा डायफ्राम भी जो है वो थोड़ा ऊपर रहता है। लेकिन जब हम पेट के बल लिटाते हैं तो डायफ्राम यानी कि जो पार्टीशन है चेस्ट और पेट के बीच में, रेस्पिरेटरी मसल जिसको हम कहते हैं, वो नीचे आ जाता है, लिवर नीचे आ जाता है और हार्ट नीचे पहुंच जाता है। तो फेफड़ा खुल के मूवमेंट करता है, उसके फेफड़े की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। यही प्रोन पोजीशन का फायदा होता है।
तो उसका फायदा भी लेते रहिए, ऑक्सीजन सपोर्ट भी दीजिए। लेकिन कुछ रेड फ्लैग साइंस हैं, वो जरूर याद रखिए, वो आपको अगर ऑब्जर्व करने होंगे। अगर वो ऐसा होता है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें और अस्पताल ले जाएं। नंबर 1, आपका मरीज चैतन्य अवस्था में है, कहीं ऐसा तो नहीं उसका होश या उसकी जो जनरल कंडीशन है वो डिटोरेट कर रही है और वो जो है वो बेहोशी की अवस्था में जा रहा है, बहुत जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, आप पल्स ऑक्सीमीटर जब नापते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ पल्स रेट भी उसमें दिखता है। अगर पल्स रेट 120 के ऊपर जा रहा है, मतलब अलार्मिंग कोई सिचुएशन हो रही है, तो भी आपको अस्पताल या डॉक्टर की राय लेनी है, अस्पताल में जाना है या डॉक्टर की राय लेनी है। नंबर 3, अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल 90 से नीचे जा रहा है तो भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है, मतलब ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ 90 के नीचे जा रहा है तो भी आपको अस्पताल जाना है। या वो अगर आपने देखा कि मरीज के होंठ नीले हो रहे हैं, जबान नीली हो रही है, नाखून नीले हो रहे हैं, तो भी एक रेड फ्लैग साइन है और आपको अस्पताल की जाने की जरूरत है या डॉक्टर की जाने की जरूरत है। और अगर ये बुखार जो है 104 से ऊपर बराबर बना हुआ है, नहीं उतर रहा है किसी के कारण, तो भी आपको डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। ये चीज अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये तमाम लक्षण हैं जिन्हें बहुत खास तौर पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप घर में भी अगर अपना इलाज कर रहे हैं तो ये तमाम लक्षणों को आप ध्यान में रखें कि क्या वो सही वक्त है कि आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है। डॉक्टर दीपेंद्र, एक सवाल यहाँ पर आया है, वो कह रहे हैं कि उनको लगातार 15 से 16 दिन हो गए हैं, उनको बुखार बना हुआ है, 100 से नीचे उनको बुखार बना हुआ है, हल्की कमजोरी है, कोई और ऐसे उनके लक्षण नहीं है, कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ऐसे में क्या करना चाहिए? पहले उनका कोविड पॉजिटिव है रिपोर्ट्स है, उसके बाद नेगेटिव आई है। नहीं, उनकी कोविड रिपोर्ट अभी तक नेगेटिव ही है, लेकिन बुखार नहीं जा रहा है, 15 से 16 दिन हो चुके हैं, 100 से नीचे लगातार बना हुआ है। क्या कोई टेस्ट कराने की जरूरत है या क्या करना चाहिए उन्हें? अगर इतने दिन से बुखार लगातार बना हुआ है, फिर भी इस पेंडेमिक में मैं मान के चलूंगा कि उनको कोविड ही है। और क्योंकि RT-PCR और PCR ये 100% सेंसिटिव नहीं है, तो ऑलमोस्ट 30 to 40% केसेस में नेगेटिव होते हैं। तो अगर कोविड है और इनको टेम्परेचर लेकिन 100 से अगर नीचे है, तो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि 100 से नीचे है, फिर भी उनको फीवर की फीलिंग आती है लेकिन टेम्परेचर नहीं रहता है। अगर वो 90.5 है तो उनको फीवर नहीं मानेंगे। 1 से 1.5 डिग्री तक फ्लक्चुएशन नॉर्मली होता है। अगर 100 नहीं है, 100 से ऊपर नहीं है तो फीवर नहीं मानेंगे। ज्यादातर मरीज बोलते हैं हमें फीवर जैसा फीलिंग आ रहा है, वो फेब्रिस फीलिंग करते हैं। लेकिन हम मान के चलेंगे कोविड है और उनका सिचुएशन नॉर्मल है और कोई सिम्टम नहीं है ब्रेथलेसनेस का, तो नॉर्मली आप 14 डेज तक वेट करिए, ठीक हो जाएगा। दूसरा है कि अगर कोविड नहीं हो तो इतने दिन फीवर नॉर्मली टाइफाइड का फीवर हो सकता है, तो बेटर टू गेट टेस्टेड CBC और विडाल टेस्ट, ये सब और टाइफाइड का सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं तो वो करा लें। और बेटर है कि एंटीबायोटिक ले लें। अगर कोविड नेगेटिव आ रहा है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो टाइफाइड की ट्रीटमेंट किसी कंसल्ट करके लिया भी होगा, तो एक कोर्स टाइफाइड की डेफिनेटली ले लेने चाहिए। और लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड माइल्ड केसेस के लिए जितनी भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया, अपनी सिचुएशन मेंटेन करें, टिल 14 डेज तक आपको केयरफुल रहना है। वीकनेस भी बता रही है, तो नॉर्मली कोविड में वीकनेस, टाइफाइड में उतना वीकनेस नहीं है, तो ज्यादातर मेरे को लग रहा है कि कोविड ही होगा। लेकिन इट टेक टाइम, कुछ मरीजों में ज्यादा लंबे समय तक रह रहा है, 14 डेज इवन 20 डेज। तो बस अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करें, मल्टीविटामिन ले सकते हैं, पैरासिटामोल अगर 100 और 100+ आता है तब लें, और डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बार टाइफाइड का टेस्ट करा लें। अगर पॉजिटिव आते हैं तो फिर उसकी ट्रीटमेंट। All right, I'll take this question to Dr. Varshney. Shivam Khare wants to know that does the use of excessive medicines prove to be more harmful than the virus itself? And he wants to know how far telemedicines or teleconsultations are a fair choice for treatment for patients with comorbid conditions. Yes, a very good question. Actually, no medicine should be taken by patient itself. Only a paracetamol can be taken. All other medicine are very specific medicine, and it should only be taken with the consultation of the specialist or physician, and he or she, any doctor, they will decide at what type of medicine to be given, what doses to be given, and how long to be given. So this is the question. And because the medicine is the medicine, they can have their toxic effects also, whether these are the antibiotics or steroids medicine or any other medicine. So they should only be prescribed by the physician and must be taken under his guidance or supervision. And telemedicine is now picking up everywhere, and most of the things can be discussed on the telemedicine.
doctor can advise the facility at the home. बिल्कुल, तो टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन के थ्रू आप They डॉक्टर can से have सलाह the ले सकते blood हैं। pressure reading, oximeter reading. So many things the patient can tell to their doctor, and on those conditions, the doctor can decide whether to go for further testing or further medication. And of course, many patients who are having the chronic disease like diabetes, hypertension, etc., they can be advised on the telemedicine at this time of the COVID, because you have the definite problem if you are going to the hospitals and other places, and you can contract the virus. So telemedicine is a good thing, and all over world and even in our country it is taking up, and many big hospitals, even the RML hospital, we are also providing the telemedicine facility. AIMS and other big hospitals are providing. So it is a good tool for the patient, and they must use it. जी, अगला सवाल यहाँ पर सौरभ कुमारी पूछना चाहते हैं कि इनकी बड़ी बहन मैं ऐड करना चाह रहा था। जी जी जी। मैम मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे कॉल हमारे स्पेशली पेरिफेरी से आ रहे हैं, विलेज लेवल पे बहुत लोगों को फीवर हो रहा है, दे इनिशियली गेट टेस्टेड फॉर टाइफाइड बिकॉज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ दिस कोविड टेस्ट where the doctor say that you just go to the district level because it is not available at the peripheral PSC level. So they initially get tested because it is easy to do the test through the blood. So they get tested for typhoid positive, and they were in treatment, and later on they deteriorated. And again coming to our hospital, and then they get tested for this COVID. So I just want to say that all the patients who having a fever in this pandemic, they should take as a COVID rather than the typhoid, because there is a chance of false positivity in the viral fever for typhoid. So that may be the cause for the delay presentation and may be associated with the worse outcome. So especially all the patients who having a fever or having this COVID symptom at the peripheral level, they should get tested for COVID as early as possible, so that we can detect in the earliest stages and we can put the patient on treatment so that we can reduce the progression. जी, तो और भी टेस्ट आप करा सकते हैं अगर आप अपनी रिपोर्ट से आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। सौरभ कुमारी यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि बड़ी बहन इनकी कोविड पॉजिटिव है और वे 6 महीने की बच्चे की माँ है, क्या बच्चे को माँ का दूध दें या नहीं, और क्या खिलाना चाहिए और क्या उपाय बताएं? डॉक्टर सूर्यकांत, आप ये सवाल लेंगे। देखिए, जब तक ये कोविड पॉजिटिव है, यानी जब तक सिम्टम है, तो लिटरली बच्चे का इन्हें प्रोटेक्शन करना होगा। और देखिए, दूध पिलाने में बच्चा बहुत पास लाना पड़ता है, तो इसलिए कम से कम 2 हफ्ते का तो इन्हें प्रिवेंशन प्रोटेक्शन लेना ही पड़ेगा कि बच्चे को अलग ये कर सकती हैं कि एक स्क्वीजिंग मिल्क स्क्वीजिंग मशीन्स आती हैं, उसमें से ब्रेस्ट में से मिल्क निकाल के और वो दे सकती हैं, दूसरा कोई पिला सकता है, या गाय का दूध या और कोई जो डिब्बे का दूध होता है वो दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये कहीं से रिकमेंडेड नहीं है कि पॉजिटिविटी के दौरान आप बच्चे को, क्योंकि बच्चे के लिए हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो इसलिए बच्चों को तो बहुत छोटे बच्चों को जो दूध पीते हुए बच्चे उनको तो बहुत टॉप प्रायोरिटी पे प्रोटेक्शन में रखना है। तो इसलिए मेरी सलाह यही है कि इनको जो है, और जब तक कोविड पॉजिटिव है, नेगेटिव होने के मिनिमम 2 वीक्स के बाद ही ये वैक्सीन लगवा सकती हैं। All right, Dr. Suryakant, you were talking of the thought process. I would also want you to, take this specific case wherein the person asked that his mother, experiences a fall in the oxygen level every time she hears a depressing news, untoward news. To what extent should that be considered as a symptom of COVID? Is it normal for oxygen levels to drop if a person is overwhelmed or depressed? And what is to be done next? Dr. Suryakant? All right, I think we've there is some problem with the audio connection there, but I'll take that question to Dr. Dipendra. Would you take that question, Doctor? What is to be done if a person is depressed or overwhelmed, and because of that the oxygen level drops? I think overweight or the person who is depressed cannot be caused for the low oxygen level. So if the oxygen is continuously low or persistent low, then it means that he has some problem. So, but just a patient is depressed and I'm not feeling well, or a patient is obese or overweight, this cannot be a cause for low oxygen, especially less than 95%.
So if the patient having a less than 94% saturation or even less than 95% in a healthy individual, it's better to be evaluated. And if you had a symptom of COVID, then definitely it should be evaluated for COVID. And I have seen there are a few patients who don't have any symptoms, like even breathlessness, and just called me that his saturation is sometimes reach up to 85, but he has not complained, he is able to walk. So in that cases, I have initially told that there is a concept of silent hypoxia or hypoxia. So such patients should be also monitored, and if he has any symptom, he should get the test for COVID, or we need to take all the precautions for the COVID in such type of patients. All right, Dr. Varshney, Mr. Shailendra Uppal on our Facebook page wants to know that he's 61 years old and he was corona positive in November. He has a tinnitus problem since his recovery. What is the reason and what is to be done? Yes, he should go to a ENT specialist and must get the checkup for what is the cause of the tinnitus, whether he is having any other problem has been precipitated by the coronavirus, because normally it should not persist for so long. So definitely he must get a ENT checkup and appropriate treatment. डॉक्टर वार्ष्णेय, अब एक सवाल आया है, रश्मि शाही पूछना चाहती हैं कि उनकी मदर को सर्दी खांसी थी, 2 दिन बाद उन्हें वैक्सीन लेने के 2 दिन के बाद उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ गई है और आज 16 दिन हो गए हैं, लेकिन बुखार और सर्दी खांसी अभी भी बना हुआ है. ऐसे में क्या किया जाए? Definitely, देखिए, he took a vaccination, but at the same time possibly she was exposed to the virus and they got the infection, तो उनको कोरोना हो गया है. और चूंकि कोविड पॉजिटिव है और 16 दिन से टेम्परेचर चल रहा है, तो शी मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड. एक तो हम बार बार बात कर ही रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप तो नहीं कर रहा. अगर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप नहीं कर रहा तो अच्छी बात. फिर भी जो है सेकंड जो वीक होता है उसमें इन्फ्लामेशन बॉडी में परसिस्ट करता है, तो वी मस्ट गेट द इन्फ्लामेटरी मार्कर्स चेक. द CRP इज वन इन्फ्लामेटरी मार्कर which is very good, so we should see CRP is not raised, and D-dimer is another test which shows that there is any coagulation abnormality. So these two tests, there are many other tests like ferritin level, IL-6 level and others, they are not required. At the basic level, a CRP and D-dimer is good enough. And if the CRP is raised and oxygen levels goes down and there is a COVID thing, then the HRCT test also can be done. And if required, then a low dose of steroid can be given under the supervision of a physician. All right, Dr. Suryakant, we're running short of time. Very quickly, we'll take this question. Mr. Ashok Sharma wants to know that if someone can hold his breath for 1 minute or more, does that mean that he is COVID negative? It doesn't mean COVID negative, but it means that their lung stamina is very good. COVID positivity or negativity actually depends upon the COVID test. And COVID test, if it is the coronavirus activity is confined to the nose and throat only, it's not affecting the lungs, so lung capacity will not decrease. So it's an indirectly test of the lung stamina, doesn't mean the COVID positive or negative. बिल्कुल, तो बहुत सारे सवालों की कोशिश की है हमने यहाँ पे जवाब ढूंढने की. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों का, तीनों ही डॉक्टर्स का, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो डॉक्टर स्पीक के इस अंक में इतना ही, लेकिन आप सभी को हम बता दें कि अभी भी आप अपने सवाल जो हैं वो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज दिन में 3 बजे और 7 बजे एक बार फिर हम डॉक्टर स्पीक का एक खास कार्यक्रम लेकर आएंगे. और ख़ास तौर पर 3 बजे जो है वो खास कोविड संक्रमण के दौर में किस तरह से महिलाओं से जुड़े तमाम जो इश्यूज़ हैं, जो तमाम मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, उससे जुड़ा हमारे कार्यक्रम रहेगा. साथ ही वो जो माएँ हैं जो कोविड संक्रमण के खिलाफ इस वक्त लड़ाई लड़ रही हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो आपके गायनोकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं या फिर वुमेन हेल्थ से जो इश्यूज़ हैं, उससे जुड़े तमाम सवाल आज आप 3 से 4 के बीच पूछ सकते हैं. All right, with that we'll end this edition of Dr. Speak here. But remember, keep wearing a mask and wear it correctly and properly. That is the best precaution you can have against COVID-19, and also keep following COVID appropriate behavior. Thanks for watching. Namaskar. नमस्कार.